My name is Akash Yadav. I belong to Pink City, that is Jaipur district of Rajasthan. I have done my schooling from Jaipur and completed my graduation, that is BSc Honors Horticulture from Navsari Agricultural University in 2022. During my graduation, I also worked on the production and marketing of resin-based products using various floral as well as other plant parts. Coming towards my family, we are six members in my family. My parents, my grandparents, myself, and one of my younger brother. My father is a farmer and my mother is a housewife. About my strengths, I have good communication as well as marketing skills. I am a team player and a quick learner. I consider myself as a very focused person, always working towards my goal in a very efficient manner. About my hobbies, I love to write poetry and quotes in my free time. That's all about me, sir. In case if you want to know more, I shall be glad to answer. ओके आकाश जी, आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, sir. तो आकाश जी, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया आप हॉर्टिकल्चर से हैं, Yes, sir. तो आपने हॉर्टिकल्चर जॉइन करने के बाद ये क्यों नहीं सोचा कि मैं खुद के घर पे खेती करूँगा या फिर हॉर्टिकल्चर में अपना करियर बनाऊँगा? बैंक के क्यों जॉइन किया आपने? सर जैसे कि मैंने हॉर्टिकल्चर किया तो मैंने देखा जैसे मेरे फादर है वो फार्मर हैं तो फार्मिंग में अप एंड डाउन्स बहुत आते रहते हैं और मेरा पहले से ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं अपने आप को और अपने फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबल कर पाऊंगा एंड जो मेरे फादर पे और फैमिली पे बर्डन है वो भी कम होगा वो भी एफिशिएंटली अपना वर्क कर पाएंगे तो दैट्स वाई तो आपने सोचा नहीं इसके बाद एमएससी कर लें, हॉर्टिकल्चर के बाद पीएचडी कर लें? सर कुछ तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बाकी उस चीज़ में मेरा इतना इंटरेस्ट था भी नहीं सो आई चूज द जॉब मतलब आपके पिंक सिटी के बारे में बताइए, जयपुर के बारे में बताइए। दिस इज बेसिकली दिस इज नोन एज पिंक सिटी बिकॉज जो यहाँ के राजा थे राजा राम सिंह उन्होंने मोस्ट ऑफ बिल्डिंग्स को पिंक कलर करवाया था इन द होनर ऑफ द जब क्वीन विक्टोरिया जब आने वाली थी उनके होनर में इसको पिंक कलर करवाया था दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पिंक सिटी ओके। अगर आपको कहीं रूरल में पोस्टिंग मिलती है जॉइनिंग के बाद, यस सर तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे मतलब कि जैसे आप राजस्थान से हैं, कहीं आपको आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग दे दी जाए या फिर कहीं तमिलनाडु में पोस्टिंग दे दी जाए, तो क्या आप जाएँगे? Yes, sir. During my graduation also I have explored various areas and मैंने भी रूरल एरियाज में बहुत एक्सप्लोर किया है और मुझे एक्सपीरियंस भी है उस चीज़ का थोड़ा तो आप रूरल एरिया में खुद को कैसे अडॉप्ट कर पाएँगे? वहाँ की कंडीशन से कैसे खुद को तालमेल बिठा पाएँगे? आई एम ऑल्सो अडेप्टिव इन नेचर तो वो मेरे लिए इजी होगा मैंने ग्रेजुएशन में भी ड्यूरिंग ELP प्रोग्राम्स एंड रावी प्रोग्राम्स उस चीज़ को एडजस्ट किया है बहुत अच्छे से ओके आकाश, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताइए ना। My strength is that I have good communication as well as marketing skills. I am also a team player. And my weakness is I can't end my day without writing few lines. Okay, how to overcome your weakness? As it is not like the weakness, but it's necessary for me. That's why it also provides me it's like just a booster dose for the next day. So overall ये इतना कुछ affect करता नहीं है मुझे. Okay. Hello, Akash. Yes, sir. You have mentioned that writing poetry is your hobby. So how it will be helpful for bank and for your personal growth? As during writing, it also improves my decision making skills, or maybe it is not helpful directly, but indirectly it helps me. Like it works as a booster dose for me for my upcoming work or for the stress relief, etc. You said you belongs to Jaipur city, Rajasthan. So Yes, sir. what are the problems faced by farmer in your area?
Sir, basically the main problem is the level of groundwater is very low. So the main problem is of irrigation. Hmm. Okay. So let's think you are posted in your native place, Jaipur. So Yes, sir. what are the ways to increase that water level, or what do you think about to mitigate the solution of the problem, Sir, or first to of all, I can recommend the farmers to grow the crops like millets, which require the less water quantity for their life cycle. Or in the high spacing crops, they can use the drip irrigation, which have the high irrigation facility, high irrigation efficiency. okay. Rajasthan is the highest millet growing state in India, Yes, sir. right? Yes, sir. ओके, ओके। तो आकाश जी, आपके बारे में कुछ फीडबैक है। Yes, sir. जब आपको मैंने हिंदी में कुछ सवाल पूछा तो आपने इंग्लिश जंप कर गए। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपसे सवाल हिंदी में हो, तो जवाब भी आपका हिंदी में होना चाहिए। जब आपसे सवाल इंग्लिश में हो, तो नो डाउट आपको इंग्लिश इस्तेमाल करनी है। थोड़ा-सा अपने बारे में, थोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि जयपुर के बारे में पूछा आपने, पिंक सिटी कह के बस टाल दिया है। आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब भी बताना है, वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ पे लोग कौन-कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। उस तरह की इकोनॉमी कैसे रन करती है। Yes, उसके बाद आप जंप रूट पर जाते हैं। मैंने आपको रूरल पोस्टिंग के बारे में पूछा था, तो आप सवाल से तुरंत जंप कर गए कि मैंने आगे किया है, मैंने वहाँ के फार्मर से मिला हूँ। आपने बस इतना कह के सवाल को टाल दिया है। ये जवाब बहुत शॉर्ट था। उसके बाद आपने बताया आपकी वीकनेस राइटिंग है। नहीं, आपकी वीकनेस राइटिंग है, सही बात है। सुबह आप कुछ लाइनें लिखे बिना अपना दिन स्टार्ट नहीं करते। तो ये किस तरह की वीकनेस हुई आपकी? ये वीकनेस तो नहीं है। अगर आपको आपके बारे में पता नहीं है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएँगे, बताइए? तो आपको सबसे पहले आपके बारे में जानना है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना है। yes, sir. आपको गौरी सर ने फार्मर के प्रॉब्लम के बारे में पूछा था। बस आपने वाटर की स्कैरसिटी बोल के आंसर ही नहीं कर दिया। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। जब इन जनरल सभी को बता रहा हूँ, जब कोई एक जनरल क्वेश्चन होता है कि प्रॉब्लम क्या फेस करते, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं कि मतलब प्राइस कम मिल रहा हो या फिर रेनफॉल कम है, वाटर स्कैरसिटी, वो तो जनरल प्रॉब्लम हुआ। आप अपने बेसिक प्रॉब्लम भी बता सकते हो। इससे ये प्रूफ होता है कि आपको एक्चुअल में वहाँ क्या चलता है, ग्राउंड लेवल पे पता चलता है। बेसिकली रेनफॉल कम है या फिर वाटर स्कैरसिटी, ये तो ओवरऑल पूरा रीजन का प्रॉब्लम होगा। मान लो अकेले जयपुर का नहीं, महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश हो, हर जगह कहीं ना कहीं वाटर स्कैरसिटी चलती ही रहती है। वहाँ के जो बेसिक प्रॉब्लम है फार्मर्स के, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, कई जगह बिजली की सप्लाई कम ज्यादा होती है, कई जगह एनिमल भी दिक्कत देते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम भी आप मेंशन कर सकते हो। इससे कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम मेंशन हो उसमें। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, आकांक्षा मिश्रा अगर आप प्रेजेंट है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. यस, थैंक यू आकांक्षा। प्लीज Thank you, इंट्रोड्यूस। sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आकांक्षा जी। Sir, my full name is Akanksha Mishra. I was born in Nasik, Maharashtra, and grown up in Bilaspur, Chhattisgarh, also known as Rice Bowl of India. I am a determined and enthusiastic girl. I have done my graduations from Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya in 2023. I live in a nuclear family. My father is an ex-serviceman in army and currently he is in police department. My mother is an amazing homemaker. I have one elder sibling. Sir, my hobbies is cooking and writing a diary. And my short term goal is to become financially independent, and after that I see myself in a better position in an organization where I can build my career along with my organization. That's all about me, sir. If you like to know more about me, I shall be glad to answer. ओके आकांक्षा जी, आप ये Yes, sir. बताइए, आपके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में, आपकी जो मदर है वो एक हाउसवाइफ है, तो आप कहीं से फार्मर फैमिली से बिलोंग नहीं करती। तो Yes, आप sir. अपने आप को कैसे कोप अप कर पाएँगी, मतलब जो हमारे फार्मर हैं उनके साथ आप कैसे तालमेल बिठा पाएँगी ताकि आपको जॉब करने में डिफ़िकल्टी ना हो? यस सर, मुझे थोड़ा सा फार्मर डीलिंग का भी डायरेक्ट एक्सपोजर है। ड्यूरिंग माय रावे प्रोग्राम आई आल्सो डिड एन इंटर्नशिप वेयर आई स्पेंड अ कपल ऑफ मंथ्स विद इन रूरल एरियाज विद देम,
एंड आई हैव अ डायरेक्ट एक्सपोजर, सो मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं उनके साथ कन्वर्सेशन कर पाऊंगी। जैसे कि फार्मर जो सबसे जो मेन लोन लेते हैं वो लेते हैं केसीसी वाला। तो यस सर। आप एक फार्मर को कैसे कन्विंस करें कि ताकि वो केसीसी का लोन बैंक से ले सके? वो किसी मनी लेंडर के पास ना जाके बैंक से लोन ले। सर उनको इसकी बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी सर कि अगर पहले उनको ऑलरेडी 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, फिर अगर वो टाइमली रीपे करते हैं तो एडिशनल 4% का मिलता है, 3% का मिलता है सर। और सर इसमें बाकी मनी लेंडर से अगर वो पैसे बोरो करते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको ज्यादा देना पड़ता है। और सर बैंक एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन है जिससे वो लोन ले सकते हैं। तो मान के चलिए मैं एक फार्मर हूँ, मुझे यस सर। आपके बैंक से लोन लेना है, तो मैं क्या-क्या यस डॉक्यूमेंट सर। लाऊँ ताकि आप मुझे लोन दे सकें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उनका केवाईसी करना पड़ेगा सर, जिसमें उनकी फोटोग्राफ्स चाहिए रहती है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए रहता है, इधर इट इज आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एक्सेट्रा। एंड सर उनका एड्रेस प्रूफ चाहिए रहता है। आफ्टर दैट सर उनका सिविल स्कोर चेक करते हैं कि वो जो फार्मर है वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं। ओके। गौरव सर? हेलो आकांक्षा जी। यस सर। As a girl, it is a challenging job. So how do you see yourself in a AFO position? Sir, it is, sir, not so much challenging for me because, sir, I'm adaptable of changing places. As I said earlier, that my father is in police department, so I'm used to of changing places and getting transfers. Sir, I will deal with the farmers directly. Okay, let's assume your manager is not a good person. So Yes, sir. he force you to sit in bank till 8 or 9 p.m. So what will we do in that situation? What will your action? You will oppose the manager, or what will we do in general? Sir, until and unless I completed my today's task, I will sit as per the requirement. And sir, I will not oppose. If my work is completed, then I think I should leave. Till 9 a.m. you will not oppose. Till 9 p.m. Sir, if my co-workers are with me, then I don't think so. It is a matter of concern. But yes, if it is unnecessarily have done, then I should definitely tell this to the higher authority. So basically, you will cope up with your team. Yes, sir, definitely. You said you belongs to Nasik, but you are Yes, Chhattisgarh. yes, sir. Do you know? Do you know about Nasik? Yes, For sir. which It is the Nasik is wine. famous for? Yes, sir. It is famous for grapes, and it is known as the wine capital of India. And sir, I don't know much about Nasik because when I was in 2 or 3 year old, I shifted to Chhattisgarh. Okay, so you said you were born in Nasik. So don't mention it's my personal opinion that you are born in Nasik. You Okay, will sir. directly go for Chhattisgarh. Okay, sir. ओके गौरव सर। ओमकार सर अगर आप Okay, Vimal sir. हेलो आकांक्षा। Yes, sir. आप छत्तीसगढ़ से हो क्या? Yes, sir. एक्चुअली मैं भी अभी बिलासपुर में ही पोस्टेड हूँ छत्तीसगढ़ में। Oh, तो oh. यहाँ मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है छत्तीसगढ़ में, और फार्मर क्या क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं क्रॉपिंग के लिए यहाँ पे? सर यहाँ का मेजर क्रॉपिंग पैटर्न है सर, मेनली खरीफ में सर, एज राइस इज अ मेजर फूड ऑफ छत्तीसगढ़, सो दे यूजुअली प्रेफर राइस एज अ मोनोक्रॉपिंग, बट अपार्ट फ्रॉम राइस मेज इज ऑल्सो ग्रोन, and sir in rabi wheat, gram, mustard, and sir in zaid crop they took groundnut.
like that. And sir, majorly they face the farmer. Sir, mainly here the farmers are small and marginal farmer, and there is a lack of labor availability and lack of knowledge. Uh, sir, these are the ओके major problems. अभी ओके बैंक में अभी ऐसे कौन से स्कीम्स है जिसका आपने अभी फायदा उठाया है? आपको पता है कौन सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट होते हैं और आपने अभी किसी का या आपके घर वालों ने किसी की स्कीम का फायदा उठाया है बैंक के? Yes, sir. In my relatives, there is a PM Kisan Yojana. They took benefit of that, and sir, PM Kisan and Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Mainly, I remember these two. Okay. Why do you choose banking as your career after completing the BSc Agriculture? Sir, because it is one of the most promising sector for freshers, and here the growth opportunity is maximum. And sir, its selection process is fast and transparent. And as I'm looking for the permanent settlement, I choose banking as a career, and it also provide respect and dignity in the society. Okay. Then why should bank should select you? But what are your qualities that suits for the banking job? Sir, first of all, I'm adaptable in nature, and sir, during my graduations, along with the academics, I also completed my work in the deadlines and and establish a good communication skill with the farmers and a good team player. And sir, I have a direct exposure with the farmers, and sir, I can make a connectivity between the bank and a farmer. So I feel that I'm suitable for this job. See yourself in the next 5 years. Sir, How do you feel? I see myself in a better position in an organization where I can build my career along with my organization. Okay, but which organization? Do you not yourself Sir, see in banking sector? yes, sir. In banking sector, as I am posted in scale 1 officer, so after 3 years, scale 2, scale 3, and so on, sir. Okay. Okay, sir. ओके तेजस, ओके ओमकार सर। धनश्री मैम, अगर आप कुछ पूछना तो पूछ सकती हैं। Hello. What is Yes, a ma'am. priority sector lending? Ma'am, priority sector lending, ma'am, can I speak in Hindi? Okay, no problem. मैम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वो लैंडिंग होती है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई सारे ही कमर्शियल बैंक को मैम अलाउ करती है कि इट इज द मेजर कोर डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर हाउसिंग एमएसएमई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. So in commercial bank, there is a share of a 40% which bank has to give in priority sector lending, and in regional rural bank there is a 75% share, ma'am. And ma'am, in agriculture there is 18%, and MSME 7.5%, small and marginal farmer 10% share should be given. Okay. सिर्फ कमर्शियल बैंक्स रहता है या दूसरा भी बैंक्स रहता है? मैम मेजरली कमर्शियल और शेड्यूल कमर्शियल बैंक. यस मैम. कंफर्म श्योर? Ma'am, as per my knowledge, I think so, but I will update myself. ओके ओके, अमित सर। हेलो। Yes, sir. हाँ। आप बैंक ज्वाइन करना चाहती है तो आपको असेट और लायबिलिटी के बारे में पता ही होगा। Yes, sir. ओके, देन व्हाट इज असेट एंड लायबिलिटी एंड व्हाट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन? Sir, assets are those things, sir, like, sir, assets are those things which we use and, sir, which we use and invest in long term, sir, like land, building, etc. And sir, liabilities, sir, can I speak in Hindi? यस 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 यू कैन।
सर लाइबिलिटीज वो होती है सर जो हमारा दायित्व होता है उसको रीपे करना सर, जैसे इंटरेस्ट हो गया वो हमारी एक लाइबिलिटी है सर, इंटरेस्ट पे करना एंड रेंट पे करना, और सर ये सारी हमारी लाइबिलिटीज आ जाती है। Okay, then what is net interest margin? सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया ऑन दैट। ओके, Okay. ठीक है आकांक्षा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। टाइम देते हैं, थोड़ा सा फीडबैक आप ले लो, अगर कुछ फीडबैक देना Yes, चाहें सर, अमित सर। ओके ओके। ओके आकांक्षा, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, आप लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस करवाती हैं। जब आपको सवाल हिंदी में पूछते हैं तो आप इंग्लिश में लैंग्वेज आंसर दे रही हैं। जब सर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप तो हिंदी पे स्विच हो जा रही हैं। तो अपने लैंग्वेज के बारे में Yes, थोड़ा-सा sir. फोकस रहिएगा। उसके बाद आप Yes, शॉर्ट sir. आंसर दे रही हैं बहुत ज़्यादा। आप 2 लाइनों में अपना आंसर फिनिश कर दे रही हैं। तो अपने आंसर पे थोड़ा-सा अच्छा। फोकस करिए। उसके बाद आप एक कॉन्फिडेंट एंडिंग नहीं कर रही हैं। किसी भी सवाल की जिस तरह आप शुरुआत करते हैं कॉन्फिडेंस से, ठीक उससे तरह एंडिंग करिएगा। आप कहीं न कहीं जब लास्ट में जाती है तब थोड़ा-सा ब्लफ कर जाती है। Yes, sir. उसके बाद आपकी जो बैंकिंग की नॉलेज है, मतलब कि जो एकदम बेसिक नॉलेज है, ज़रा उस पर फोकस करिए। और सर ने आपसे सवाल पूछा था आप नेक्स्ट 5 ईयर में अपने आप को कहाँ देखती हैं? तो उसके बारे में प्रिपेयर रहिएगा कि स्केल 1 के बाद 3 साल के बाद आप स्केल 2 बनने वाली हैं, 5वें साल में भी आप स्केल 2 ही रहेंगी। ज़रा उसके बारे में थोड़ा-सा फोकस करिएगा। उसके बाद आप Yes, sir. आपने Definitely. बताया कि आप पुलिस, आपके पिताजी जो है पुलिस हैं, तो ट्राई करिएगा कि जब भी आप इंट्रोडक्शन दें, ये ट्राई करिएगा कि आप ये बताएँ कि हाँ, मैं फार्मर फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, ताकि ये लगे कि आपको भी एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज है। ओके, दैट्स Okay, फ्रॉम sir. माय साइड। Okay, sir. Thank you. ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे ओंकार सर? जो सर ने क्वेश्चन पूछा था ना आपके केसीसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपने बस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स वगैरह बोले थे। इसके अलावा लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में B1 P2 और खसरा वगैरह लगता है, उसके खसरा बारे में थोड़ा खतौनी सा जानकारी ले जमाबंदी। लीजिए। Yes, sir. हाँ, वो भी लगता है ना, वो जरूरी है Yes, डॉक्यूमेंट्स। sir. और आपने नेटिव प्लेस के बारे में थोड़ा सा क्रॉप्स वगैरह का डिटेल में कर लीजिए, एक्सप्लेन वगैरह जितना भी हो, और बैंकिंग नॉलेज का भी थोड़ा Yes, सा sir. इंप्रूव कर लीजिए। और हाँ, जैसे सर ने बोला कि आप एक बार लैंग्वेज समझिए, आगे वाला कौन सा लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो पहले परमिशन लीजिए स्विच के लिए, उसके बाद में आप कंफर्टेबल हो तो लैंग्वेज में बोल दीजिए, लेकिन पहले एक बार ध्यान रखिए कि कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी लैंग्वेज में से ट्राई करिए देने का। Yes, sir. Definitely. ओके, थैंक यू ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाहेंगे स्नेहल, अगर आप प्रेजेंट हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। और प्लीज आप लोग हरी मत कीजिए जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं, क्योंकि सभी को मौका दीजिए, सभी ने समय दिया है और बहुत लोगों ने बहुत पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है। आप लोग प्रेजेंट रहिए और सभी के क्वेश्चन सुनिए, आपका भी फायदा होगा। ठीक है, अगर जिनको जाना है इंटरव्यू के बाद वो जा सकते हैं, क्योंकि हम फीडबैक इसके साथ ही दे रहे हैं। ठीक है, स्नेहल आप प्रेजेंट हो? हाँ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, sir. My name is Sneha Sudhakar Zavadika. I belong to the cotton growing region, that is the state Maharashtra district. I belong to the nuclear family. In my family, 4 members are there. My father is farmer, my mother is a homemaker, and I am the younger one. I have completed my 10th and 12th education from district Akola. I have completed my graduation in Bachelor of Science, that is the agriculture, from Dr. Panjabra Krishi Vidyapit, Akola. I have completed my master's degree in soil science and agriculture chemistry from Postgraduate Institute, Akola. And now my goal as of now to become a banker, keeping relevancy in my subject, that is the agriculture. So I want to become an agriculture field officer. As per my hobbies goes, I want to draw sketches. I like to draw sketches and making crafts in my free time. And I believe that the patience, positivity, and the problem solving ability and the honesty is my best thing. That's all about myself. ओके, स्नेहल जी, तुमको ये बताइए आपने सॉइल साइंस में एमएससी किया है, तो आपने थीसिस किया होगा, तो थीसिस का ऑब्जेक्टिव बताइए ज़रा? My thesis is objective firstly to characterize and synthesize the nano zinc oxide, and the second objective is to how that application of the nano zinc on the wheat crop in salt affected soil, and third one to analyze the nutrient uptake from the uh,
application of nanozinc on farm wheat crop. जिस तरह आपका थीसिस सुन के लग रहा है पूरा नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, तो आपको नहीं लगता कि बैंक से ज़्यादा अच्छा करियर आपको नैनो टेक्नोलॉजी मिल सकता था? तो आप वहाँ क्यों नहीं गई? No, sir. Firstly, I prefer the job security. I'm recently also work as a program officer in on cotton project. So in for MSc, I am interested for that my working, but I will join to bank. तो हमें कॉटन के बारे में ज़रा बताइए। कॉटन मतलब कॉटन के लिए क्या आइडियल कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पर हम कॉटन ग्रो कर सकें? Firstly, climatic condition. The temperature required is about 28 to 35 degrees Celsius. After that, the soil is mostly black cotton soil are used for the cotton cultivation. After that, the soil climate. Then various nutrients are there, and we mostly prefer that the organic inputs to use in that cotton cultivation. That for sowing, firstly we prepare the land preparation, plowing, hoeing, and the planking is there. After that, we sow the cotton crop during the mostly in the rainfed region. We sow that in mostly June, ओके, ending तो of the हमें June to July. कॉटन की 3 ऐसी वैराइटीज़ बताइए जो कि ड्राई एरिया के लिए सूटेबल हैं। The Ajit 155, Kirti, and CNH 440, CNH 27 523, and third one is Partek 32. We also have to grow in dryland region. ओके, तुम्ही भविष्यात एफ बनणार आहेत. मग तुम्ही एक वुमन आहात. वुमनच्या एम्पॉवरमेंटसाठी तुम्ही काय कराल? तर वुमन एम्पॉवरमेंटसाठी मी स्टार्टिंगला म्हणजे जिथे ज्यांची अशा इच्छा आहेत किंवा हे आहेत किंवा त्यांचे काही स्वप्न राहिलेले आहेत किंवा त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, त्यांना नवीन-नवीन टेक्नॉलॉजी सोबत जुळवून देणार आणि त्यांना माहिती प्रोव्हाईड करणार. त्यांचे एखाद्या गावात असे ग्रुप बनवून जसं की सेल्फ हेल्प ग्रुप असतात, त्यांच्यावर ते जुळवून आता जसं अ, ही स्कीम आपल्या ह्याच्यामध्ये पण आलेली आहे, की अजून जी समृद्धी योजना असते, त्या योजनेसाठी वेगवेगळ्या योजना आहेत महिलांसाठी. त्या योजनेबद्दल त्यांना अवेअर करेन हे सर्व. आणि जसं मिशन करोडपती दीदी दिस इज ऑल्सो गोइंग ऑन. सो त्याबद्दल पण त्यांना सांगेल, की बा त्या थ्रू आपण वेगवेगळे एल-आर-एम असतात, त्यामध्ये आपण जॉइन करून वेगवेगळे कसे प्रशिक्षण त्यांना देऊ शकतो, त्याबद्दल मी कॉन्सन्ट्रेट करेल. ओके, गौरव सर. Hello, Snehal ji. येस सर. You have mentioned you have done PG from PDQ Akola. So येस सर. tell us about Honorable Punjabrao Deshmukh ji and your home university. So Honorable Punjabrao Deshmukh is also known as Bhavrao Punjabrao Deshmukh. For my university, it is establishment date is 1979. For that, under that, four sub universities are four sub college campus are there. That is in Nagpur, Amravati is there, and for Bhavrao Punjabrao Krishi. So can I speak Marathi? So hello. येस, यू कॅन. सर भाऊराव पंजाबराव देशमुख यांनी जसं फार्मर्स ते एक लॉयर होते. त्यानंतर त्यांनी जे वेगवेगळे आपले कृषक समिती आहे त्याबद्दल त्यांनी जॉइन केल्या होत्या आणि त्यानंतर त्यांनी फार्मर्सला त्यांना दिसलं की बा आपल्या इकडचे फार्मर मोस्टली फार्मिंग याच्यावर ग्रोईंग म्हणजे याच्यावर डिपेंड आहे. त्यानुसार त्यांनी त्यांना म्हणजे प्रमोट केलं आणि त्यांना सहकार्य देऊन त्यांनी वेगवेगळे कृषी विद्यापीठ कशाप्रकारे स्थापन केलं जाईल याबद्दल त्यांनी हे केलं आणि पहिले भारताचे
स्वतंत्र भारताचे पहिले कृषी मंत्री हे आहेत. आणि ॲग्रिकल्चर कॉलेजबद्दल बोलायचं झालं तर कॉलेजच्या अंडर वेगवेगळे रिसर्च कंडक्ट केल्या जाते. वेगवेगळे टेक्नॉलॉजीज डेव्हलप होत आहेत आणि मोस्टली जो एरिया आहे ड्रायलँड एरिया त्यामध्ये वेगवेगळ्या व्हेरायटीज कशा डेव्हलप करायच्या त्याबद्दल खूप म्हणजे हे चालू आहे, रिसर्च चालू आहे सर युनिव्हर्सिटी. What's your name? Because there was network issue. येस सर. Yeah. तर स्नेहा सुधाकर जवळटीकर. Sneha Sudhakar. Okay. You know about SSG? येस सर. Yeah, I want to know you that there are Panchasutra, in SSG. Do you have any Yes, idea sir. about Panchasutra? So I read that, but I am unable to recall at that time. Okay. Okay. Is there any guidelines like that? Minimum numbers of people should be there in SSG? Yes, there is no maximum limit, but minimum is 10 to 12 person is there in SSG. Yeah, there are some exception cases. Do you have any idea, like for disability persons, for tribal people? The minimum number will be like 5. So can I guess? Yeah, you can. So it's about 5 to 6. Yeah. Less than that. For disability persons, there are some exception cases that if there are less than 5 also, we can consider as a SSG group. Okay. Do you have about SSG bank linkage? Yes, sir. Yeah. Can you just throw some ideas about it? How can it boost our economy? Sir, through by joining the SSG with our bank, we provide the loans for their enterprises development and other allied activities they conduct under the SSG group. So from that we provide the loan and women empowerment and their development is also going on and on with that our bank is also contributed and also developed by giving their loans and giving and getting interest from that. Okay. For all the participants, I want to tell that about Panchasutra. It's very important for the SHG, like regular meeting, like regular savings, and internal lending among the members, and even maintaining the book records. These are some of the Panchasutras because this will help for the bankers to rectify the wrongs going within them because this record should be compulsory maintained by the SHG so we can sanction the loan. These are the Panchasutra. Yes, sir. Coming to SHG, they play very crucial role in the present banking sector. One of this SHG has become very crucial for the banking because they have very repayment capacity is very good and chance of NPA becoming is very less. So because even we are focusing only women SHG because they are very like they will pay repayment on the time and it will be helpful for the banking and we can create the banking awareness campaign use with the help of SHG. So SHG is playing very crucial role in the present banking sector. So some questions may be raised from the panel members when you are interviewing regarding SHG. Okay, Snehal, you are done good. ओके स्नेहल जी, ठीक है तो मैं आपसे सर. यही कहना I चाहूँगा. have one question. यस, यस, प्लीज. Sir, I am doing work on organic cotton. Can I mention that or not, sir? In introduction. अगर आपको लगता है आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, आप उसमें सफिशिएंट बोल सकती हैं, तो ज़रूर मेंशन करिएगा. आप लोग कुछ Okay, sir. प्रश्न हेलो करना स्नेहल. चाहेंगे? Yes, sir. स्नेहल, आपने मेंशन किया है आपका पीजी कंप्लीट है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करिए क्योंकि पीजी स्टूडेंट से थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है. तो आपका जो Yes, थीसिस sir. है उसको और रिकॉल करिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट क्या आया और एक आपका जो पीजी हुआ है पीडी की अकोला से,
तो उसकी भी थोड़ी हाँ सर। जानकारी लीजिए पंजाबराव देशमुख जी के बारे में, और थोड़ा जितना हो Yes, सके पढ़िए, क्योंकि 1-2 लाइन में या Yes. 1-2 सेंटेंस में उसको खत्म करने की कोशिश मत करिए। ठीक है, दैट्स ऑल Okay, फ्रॉम I माय साइड। will. Okay, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सो मच स्नेहा। और नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाहेंगे Thank you, sir. विपिन गिरी, आप अनम्यूट कीजिए। कहाँ से हैं आप? हेलो सर। कहाँ से हैं आप? सर पीलीभीत। अपने बारे में कुछ बताइए। Sir, my name is Vipin Giri. I am from district Pilibhit, Uttar Pradesh. I have completed my graduation in Bachelor of Science in Agriculture in 2023 from Mahatma Jyotiba Phule Ruhelkhandi University, Bareilly. I have 4 family members. I am engaged one. My father is a small farmer. My mother is a homemaker. And I have been preparing for AFO examination since the last year of my graduation. About my strength, sir, I am an honest and hardworking person. And I am good listener, and I am good in record keeping and documentation. About my hobbies, sir, I have not any special hobby, but whenever I get time, I work in my kitchen garden. It's all about me, sir. If you like to know more, I shall be glad to answer. हेलो विपिन। Yes, sir. सर, अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके Yes, बारे sir. में तुम्हारी राय क्या है? जो फार्मर्स की डिमांड है उसको गवर्नमेंट ने फुलफिल करना चाहिए या नहीं? यस सर, फार्मर जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, वो मेजरली सर एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा सर जो लखीमपुर में जो फार्मर्स की जो डेथ हुई थी उसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सर वो जो एम एस स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन थी सर एमएसपी लागू करने के लिए, उसकी मांग कर रहे हैं सर। तो सर और लोन वेवर की मांग कर रहे हैं सर। लेकिन सर गवर्नमेंट को देना चाहिए या नहीं? क्योंकि फार्मर काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? फार्मर्स की सर- डिमांड तो मैं जान चुका हूँ, किंतु गवर्नमेंट सर को देना चाहिए या नहीं? सर जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं सर, लेकिन वो सभी डिमांड लीगल नहीं है, सही नहीं है। वो जैसे सर लोन वेवर की बात करें तो वो सर कहीं ना कहीं इतना सही नहीं है। इससे सर जो इंडियन इकोनॉमी है इस पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। और सर फार्मर कहीं ना कहीं इस चीज़ के आदी हो जाएंगे कि वो एनपीए सर ज़्यादा करेंगे, कि उन्हें ये रहेगा कि सर लोन वेवर हो जाएगा। Okay, so you are saying that फार्मर की जो डिमांड्स है वो थोड़ी कुछ ज्यादा ही है। यस सर। इस मुद्दे पे न्यूट्रल रहिए। इसके बारे में बस इतना जवाब दीजिए कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाएंगी वो सभी के हित में होंगी, बस इतना करके बात को खत्म कर दीजिए। बायस मत होइए इस मुद्दे पे, ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए ना फार्मर को क्रिटिसाइज करिए, ठीक है? ओके। हेलो। यस सर। हाँ विपिन, एनपीए के बारे में पता है आपको? तो Yes, sir. एग्रीकल्चर लोन आपने दिया है कस्टमर को और एनपीए हो रहा है, तो आपको क्या लगता है एनपीए हो रहा है उसके लिए फार्मर जिम्मेदार है या बैंक रिस्पॉन्सिबल है? आपको क्या लगता है? सर एनपीए के केस में सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर्स की सर ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सर जिस पर्पज़ के लिए अगर उसने लोन लिया है उस पर्पज़ के हिसाब से उसने अगर यूज नहीं किया है तो एनपीए होने के सर ज़्यादा चांस रहते हैं। या फिर तो सर बैंक ओके Yes, sir. तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर लोन देते वक्त आपको विजिट करना चाहिए साइट पे, तो Yes, बैंक sir. रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं सर, बैंक भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सर लोन सैंक्शन करने से पहले सर फार्मर्स का सिविल स्कोर चेक करना चाहिए और प्री इंस्पेक्शन भी करना चाहिए सर लोन का। उसके बाद पोस्ट इंस्पेक्शन भी सर कंपलसरी होता है, तो इससे भी सर एनपीए कम हो सकते हैं सर। ओके, डू यू हर्ड अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? Sorry sir, I have no idea sir, but I will try to find it. ओके ओके विपिन जी, जरा ये बताइए बैंक क्या होता है? बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? सर एक बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे डिपॉजिट्स को लेता है और लोन्स देता है। इसके अलावा अदर बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है सर।
जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा। अच्छा, आपने अभी बात करी मोबाइल बैंकिंग की। आप क्या फ़ोन पे, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं? यस सर। तो हमें सर बताइए यूपीआई क्या होता है? सर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है सर। इसमें सर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं इजीली, जो एनपीसीआई द्वारा सर बनाया गया था। तो क्या लगता है मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है? यूपीआई की सर जो मिनिमम लिमिट है वो ₹1 है, और सर कोई इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं है सर। ओके। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? सर डेबिट कार्ड एक प्रीपेड कार्ड होता है। इसका यूज़ करने से पहले हमें सफिशिएंट अमाउंट सर पहले क्रिएट करना पड़ता है अपने अकाउंट में, और ये हमारे अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होता है। जब इसमें से हम विथड्रॉल करते हैं तो वो अकाउंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है सर। और इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, सर क्रेडिट कार्ड एक पोस्टपेड कार्ड होता है सर। इसके लिए हम अगर यूज़ करते हैं तो इसकी ईएमआई या फिर इसका जो इंटरेस्ट होता है सर वो बाद में पे करना पड़ता है। ओके। तो हमको ये बताइए, आपने बैंक ही क्यों चुना? आप कहीं और भी जा सकते थे, बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते थे, या फिर कहीं और कंपनी में, किसी प्राइवेट कंपनी में जा सकते थे। आपने बैंकिंग ही क्यों चुना? Sir, banking is a good growing industry, and there are so many opportunity for the freshers, and it provide a permanent government job, and the salary, promotion, career growth is very good in banking, and so I choose banking, sir. ओके, ठीक है। विमल सर। हेलो विपिन, Yes, sir. आप आपके यूजी के सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट थे? Yes, sir. Sir, principle of agronomy, farm management, introductory entomology, and agriculture economics, and animal husbandry, plant breeding and genetics, etc. ठीक है। सभी जो जितने एस्पायरेंट्स इंटरव्यू सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो वरीट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो सभी एस्पायरेंट को उसका फायदा, सभी एस्पायरेंट को उसका फायदा होगा। जरूरी नहीं कि हम सारे एक ही स्टूडेंट को सारे सवाल पूछे। तो जितने एस्पायरेंट इंटरव्यू सेशन में भी है, तो एंड तक देखी गई सेशन को, कुछ कुछ सवाल जो आपके ना पूछो, किसी और के पूछो, उसका आंसर कैसे करना है, क्या करना है, उसकी भी आइडिया हो जाएगी। और एक चीज और, अगर आप लोग पेन एंड पेपर लेके बैठिए, जो लोग नहीं दे रहे इंटरव्यू म्यूट पे हैं, तो एक बार क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करिए, और उसको जब मीटिंग एंड हो जाए उसको आप रिवाइज कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाना चाहेंगे। Sir, any feedback regarding my improvement? ओके, तेजस सर। ओके विपिन जी, तो आपको सबसे पहले रॉन्ग आंसर देना अवॉइड करना है। मैंने आपसे पूछा था कि यूपीआई की मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो यूपीआई की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख है। उसके बाद आपने जो स्टैंड लिया इस पर, बैंक की जिम्मेदारी है कि फार्मर की जिम्मेदारी है, तो टू बी न्यूट्रल, हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। बस यही, बाकी सब सही है। ठीक है, रोहन अगर आप प्रेजेंट हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस रोहन, कहाँ से हैं आप? पुणे सर। पुणे से हैं। यस सर। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, myself Rohan Yadav Mandale. I belong to the district of Pune. I completed my BSc Agriculture with first class from Mahatma Phule Krishi Vidyapith Rauri. My hobby is driving a tractor. There are 3 members in my family: me, my father, and my mother. My father is a farmer. My mother is a housewife, and she also helps to my father in my farm. आम्हाला जरा पुण्याबद्दल सांगा. सर, पुणे महाराष्ट्रातल्या 2 नंबरची सर्वात मोठी सिटी आहे मुंबईनंतर. मुंबईपासून साधारणपणे 180 किलोमीटर अंतरावर आहे. पॉप्युलेशनच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर भारतातील 7 नंबरची सिटी आहे. नियर अबाउट लोकसंख्या सर 1,24,00,000 सर आहे. पुण्याचे सर वातावरण पाहिलं तर आपण तर सेमी एरिड मध्ये येतो सर. आणि सॉइल सर ब्लॅक सॉइल. क्रॉपिंग पॅटर्न जर पाहिलं सर आपण तर खरीप मध्ये सर मेजरली मेज अँड बाजरा घेतला जाते. रब्बी मध्ये ओनियन, आणि समर मध्ये जर पाणी अवेलेबल असेल तर मग ग्राउंडनट वगैरे. ओके.
तर रोहन बँकिंगच का? बाकीच्या अदर सेक्टर का नाही? सर ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट झाल्यानंतर माझ्याकडे असे ऑप्शन चूज करताना सर माझं ॲग्रिकल्चर बॅकग्राऊंड होतं आणि सर मी ॲग्रिकल्चर केल्यामुळे सर मला वाटलं असं प्रिपरेशन करताना इझी जाईल म्हणून मी हे फूड चूज केलं. ओके. हेलो ओंकार सर. येस सर. Hello. What is the major role of AFO in the banking sector? Yes, sir. Sir, AFO plays intermediate role between farmer and bank. Sir, मग pre-sanction लोन देण्याच्या आधी pre-sanction of loan, recommendation of loan, लोन दिल्यानंतर हे disbursement of loan, application form भरून घेणे, KYC करणे फार्मर्सची, फार्मर्सला partially disbursement of loan करणे, सर हे लोनचे रिपेमेंट करण्यासाठी टाइमली फॉलोअप घेणे. Okay. If you get other post means in other sector, then will you Yes, leave sir. the bank? No, sir. Sir, if it is याच्यापेक्षा जर चांगले असेल सर तर मी विचार करू शकतो सर. Okay. What are your major strengths and weakness? सर माझी स्ट्रेंथ इज सर मी टार्गेट जर अचीव करण्यासाठी सर माझे एक टार्गेट मी ठरवतो सर आणि ते टार्गेट अचीव करेपर्यंत सर मला मग हे होतं. And you weakness? आणि विकनेस सर मध्ये टार्गेट जर कम्प्लीट नाही झालं तर मग झोप वगैरे होत नाही मग सर त्यामुळे हे स्ट्रेस वगैरे येते. और अगर बैंक में तो बहुत सारे टारगेट होते हैं, अगर टारगेट पूरे तो होते नहीं है बैंक में, तो आप सोएंगे ही नहीं क्या? नहीं सर ऐसे नहीं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ कि प्रिपरेशन के वक्त मेरे पास टाइम कम था ना तो मैं टारगेट बेसिस पे करता था तो मेरे इंजरी से जूझ रहा था इसलिए. लेकिन सर मैंने फिर से मेडिटेशन चालू किया तो मैं अभी सुधार कर रहा हूँ इसमें. ओके ठीक आहे सर. ओके रोहन, शुगर केन बद्दल तुला जास्त माहिती आहे का काय ऍज अन ऍग्रिकल्चर इंजिनियर? सर माहिती आहे सर. हॅलो, हा शुगर केन हो, सर. बद्दल सांग थोडंफार. आणि शुगर केनला FRP का दिली जाते, MRP का नाही दिली जाते? ओके सर. सर शुगर केन सर आप पेरिशेबल म्हणजे सर आपण जर स्टॉक करून ठेवू शकत नाही. शुगर केन जसे ग्रेन्स वगैरे आहेत ते आपण स्टॉक करून ठेवू शकतो. नंतर जर मार्केट वाढले तर आपण विकू शकतो. परंतु सर शुगर केन आपण स्टॉक करून ठेवलं त्याची क्वालिटी खराब होऊ शकते म्हणून जे आपण हार्वेस्ट केल्यानंतर लगेच आपल्याला फॅक्टरीमध्ये वगैरे न्यावं लागते म्हणून त्याला FRP दिली जाते सर. शुगर केन मध्ये जर सांगायचं झालं तर दोन प्रकारचे असतात. बोल कंटिन्यू. तर दोन प्रकारचे असतात, एक 8 साळी असतो आणि एक साली असतो. एक साळी 12 महिन्यानंतर कम्प्लीट होते लाईफ सायकल आणि 8 साळी 1.5 वर्ष लागते सर. मग जर आपण बोलू शकतो करंट सध्या FRP किती चालू आहे शुगर केन साठी? तर आता 315 ह्यावर 2023-24 ला होता पण मी आता करंट न्यूज मध्ये वाचलं त्यावेळेस 24-25 साठी 340 रुपये भेटलेला आहे. गुड. ओके, थैंक यू रोहन. हेलो हाँ गौरव सर प्लीज आस्क. रोहन, लीड बैंक के बारे में सुना है? येस सर. पता है लीड बैंक क्या होता है? सर लीड बँक एखाद्या एरियामध्ये सर ज्या बँकचे ब्रँचेस वगैरे ब्रँचेस जास्त असतात किंवा मॅक्झिमम कस्टमरचे अकाउंट ज्या बँक एरियामध्ये जास्त ज्या बँकेमध्ये आहे त्या बँकला आपण लीड बँक म्हणतो त्या एरियासाठी. ते जसे पुण्यासाठी सर बँक ऑफ महाराष्ट्र लीड बँक आहे. ओके ठीक है रोहन. पहला तुम्हें लैंग्वेज जंप को करता है. लैंग्वेज जंपिंग नहीं होनी चाहिए. आप सीधा इंग्लिश Okay, से sir. मराठी से हिंदी, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पर फोकस करिएगा. आपने बताया वीकनेस Okay, जो sir. है वो टारगेट कंप्लीट ना होने पे आपको नींद नहीं आती. तो भाई वो सबको नहीं आती. वो कोई वीकनेस नहीं है आपकी. तो आपको अपने बारे में थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा. होने के बारे में Okay, थोड़ा sir. प्रिपेयर करिएगा. ओवरऑल गुड है आपका. बस ये लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखिए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर Okay. इंटरव्यू. थँक्यू सर. ओके थैंक यू रोहन. रूपिनी. हेलो. Yes, sir. ओके आप कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन कीजिए. हेलो रूपिनी, Yes, sir. इन्फ्लेशन के बारे में पता है आपको? गुड मॉर्निंग. Inflation. Do you know about inflation? Yes, sir. So what is inflation and it is good or bad?
Sir, one more time, please. इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन Yes, sir. Inflation is the rise in the prices, which inflation is the rise of prices that goods and services provided by the government of India. तो ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है? What, sir? Inflation, it is a good thing or bad thing? Yes, sir. In some situations it is a good thing, sir. But without inflation, maybe it will be a bad thing, sir. Okay, ठीक है. Now introduce yourself. Yes, sir. Good morning, sir. My name is Rupini Potta. I belong to the state Telangana from Jagatyal district. I have pursued my graduation from Professor Jayashankar University, Rajendra Nagar, Hyderabad. And coming to my family details, my father is a senior assistant in revenue department and my mother is a housewife. I have two younger sisters and I am the elder one. Coming to my hobbies, sir, I like to play badminton in free time and dancing is one of my favorite things. Thank you. This is it. All about this. Okay, Channa sir. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning. Rupini, do you have any idea about insurance schemes that will helpful for farmers? Yes, sir. Crop insurance scheme, sir. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, sir. Can you just tell me more brief about Fasal Bima Yojana? Yes, sir. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana is introduced in the year 2016, and it will provide the insurance for the crops which have lost due to heavy rainfall or some other problems that are climate regarding. Okay. Does insurance cover for any war and other things that happens? No, sir. No, it is an exception, sir. Due to the war and enmity, it won't record the crop losses, sir. Do you have any idea about like share between state government and central government? What is the percentage of share? Yes, sir. The share between the state and central government is 50-50, sir. Okay. When if interviewer asks you what are the insurance scheme that will benefit the farmer, you can also add on like SBY, Suraksha Bima Yojana, Bima Yojana and Jeevan Jyoti even Bima. Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana. These are scheme that will benefit the farmer. So you can not just insurance regarding the crop. Even the life of farmer is also very important. So you can just add on other schemes. For all participants, you can add other scheme also when interviewer asks about what are the insurance scheme that will benefit the farmer. Okay. Thank you. Tejas sir. Okay, ji. What is a monetary policy? Monetary policy is the committee that will control the inflation rate in the country, sir. And it also controls the flow of money. तो क्या आपको पता है इसमें से कौन से रेट डिसाइड होते हैं जैसे CRR, SLR? Yes, sir. You are aware about CRR, SLR, repo rate, reverse repo rate? Yes, sir. Percentage. So what is CRR? CRR is the cash reserve ratio, sir. It is the amount of cash that is kept within the bank for any. Sorry, sir. Now I am unable to read. Okay. What is RBI? RBI is a central bank, sir, which will control the rate of inflation and flow of money. It will also guide all the public sector banks, private banks, all development financing institutions, and payment banks. What are your strengths and weakness? My strength. Yeah, yes, your strengths and your weaknesses. Okay, so my strengths are, sir, I'm adaptable and I'm flexible and I'm honest. Also, sir, I can take the pressures at a time. I can handle them. And coming to my weakness, sir, I don't think
I do have such weakness, but laziness, I think, sir, it is one of my weakness. ओके। सो रुपिनी जी, Sir. आपसे पहला सवाल था कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। तो भी कॉन्फिडेंट ऑन योर आंसर्स। आपने बताया कि इन्फ्लेशन इज अ राइज इन प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नॉट द गवर्नमेंट प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज अ जनरल राइज इन प्राइस, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था इट इज इन्फ्लेशन गुड और बैड, तो आपने बस बताया कि सर अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट इज गुड एंड बियॉन्ड दैट इज इट इज बैड। तो आपको ये नहीं बताना है कि किस तरह गुड है किस तरह बैड है। इसको मैंने एक लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके फादर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, तो ये ट्राई करिएगा कि आप इंटरव्यू के बताएं कि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप पहले ही बताया है। I'm unable to hear, sir. ओके, आपने बताया कि आपके जो पिताजी हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप जब इंट्रोडक्शन देंगे तो ट्राई करिएगा कि अपने आप को फार्मर फैमिली से बिलोंग करें। जैसे कि आप बताइएगा हमारे दादाजी फार्मर हैं और मेरे पिताजी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं। Okay. उसके बाद आपसे पूछा गया था पीएमएबीवाई, तो पीएमएबीवाई को उसको जरा ठीक ठाक प्रिपेयर करिएगा। और जब आप आंसर देते हैं, शुरुआत तो आपकी बढ़िया है, लेकिन आप आंसर के बीच और उसका एंड में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहती हैं, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो चेहरे पे स्माइल रखें, उसके बाद आंसर करिएगा। आपकी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी मुझे कहीं न कहीं लगा तो थोड़ी वीक है, तो अपनी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पर फोकस करिए। इसके अलावा वीकनेस जो है, वीकनेस बताते वक़्त आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि ये मेरी वीकनेस लेज़ीनेस है और मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसको ओवरकम कर सकूँ। केवल आपको वीकनेस बताना नहीं है, तो आप कोई उसका एक पॉजिटिव साइड भी बताना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। Thank you, sir. ओके, ऑल द बेस्ट रुक्मी। Thank you, sir. ठीक है, हम बुलाना चाहेंगे अभिश्याम। अगर आप प्रेजेंट हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर। अब कंफर्टेबल हो आप वीडियो ऑन कीजिए अपना। ओके सर। अभिश्याम, कहाँ से हैं आप? सर आई बिलोंग्स टू Calicut डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला से हैं। हिंदी तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी फिर। सर आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टॉक लिटिल बिट बिकॉज आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन महाराष्ट्र, सो आई कैन स्पीक also. Okay, please introduce yourself. Sir, my name is Abhishyam Yu. I am a native of Calicut district in Kerala. I have completed my Bachelor of Science in Agriculture from Vasantrao Naik Marathwada Krishi Vidyapith in Maharashtra. I belong to a nuclear family. My father is working as a private employee. My mother is a homemaker and I have a younger brother. My hobbies are playing cricket and listening music. And my goal is to become a general manager in bank. That's all about me, sir. Thank you. Gaurav sir, you can ask question. One second. Hello, Abhisham. Yes, sir. So is my voice is clear or am I audible? Yes, sir. It is. Yes, audible. So your belongs to Kerala. So Yes, sir. in general life, students from Kerala choose a medical career or engineering career. So why you choose agriculture? Or in particular agriculture, why you choose a banking sector? Why not academic? Yes, sir. First of all, I had an interest in agriculture from my high school onwards. My favorite subject was botany, and I was scoring good marks in botany. So one day my sir told me, these are the opportunities that you can go if you are loving this subject. So I decided to choose this agriculture, and I have prepared for the entrance, and I cracked the ICR exam, and I got admission in Maharashtra. And coming to the banking field, sir, banking is a good growing industry, offering a job for agricultural students also. That's why it attracted me a lot, because I can use my knowledge and my skills in this job. And there are career growth opportunities in this banking sector also. And the exam that is conducted every year. And the recruitment process is very transparent, and the exam pattern is also impressed me a lot, sir. Okay, so let's talk about a ground problem.
It's a general ground problem. So suppose you were posted in state like Uttar Pradesh or Rajasthan, non Malayalam or non English speaking state. So how will you cope up with farmers? How will you cope with their problems, and how will you suggest them to, or how will you promote your bank products to the Okay, farmers? sir. First of all, sir, I have done my Are graduation. you getting my questions? Let me ask first. Yes, sir. Yes, sir. I got it, sir. Okay. So first of all, I have done my graduation in Maharashtra. During our Ravi program, a unit is there called village attachment, in Okay. which we were allotted to a particular नेटवर्क नहीं आ रहा है, आवाज भी नहीं आ रहा है उसका शायद. यस यस ठीक है। इनका हम बाद में गण करते हैं, अगर ये रुकेंगे तो एंड में फिर से कर लेंगे। Okay. हमने रितिका को बुलाया था स्टार्टिंग में। रितिका अगर आप प्रेजेंट हो तो फिर से अनम्यूट कर सकती हैं, उनका भी माइक नहीं चल रहा था उस टाइम पे। किरण कुमार अगर आप प्रेजेंट हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किरण, कहाँ से हो आप? सर बालेश्वर ओडिशा से हूँ सर। ओडिशा? यस सर। आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? यस सर, यस सर। अपना परिचय दीजिए। Sir, my name is Kiran Kumar Pradhan. I belong to Baleswar. It was awarded as the best marine district of India in 2021. About my qualification, I have completed my graduation in agriculture from Shiksha Anusandhan University in 2020. After that, I did my masters in agriculture extension and communication from Sam Higginbotham University in 2023. Coming to my family, there are 4 members in my family. My father is working in as a collection agent in LIC, and my mother is a homemaker. About my goal, my short-term goal is to become an AFO, and my long-term goal is to become a successful in my life. That's all from my side. If you would like to know more about me, then I shall be glad to answer. तेजस सर? ओके Sorry, sir. किरण जी, आपने एक्सटेंशन से एमएससी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो इस किस तरह से हेल्प होगा बैंक के लिए? सर मैं हमारे एक्सटेंशन में सर ये कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है। तो हम जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस समय हम गांव में जाके लोगों के साथ बात कर रहे थे। उसके बाद उनके प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे थे और उनका जो एक्चुअल प्रॉब्लम था उनको उसको समझ के अच्छे से उसका सॉल्यूशन भी देते थे। तो जब मैंने अपनी थीसिस का वर्क जब किया था तो उस टाइम मैं 2 महीना अपने थीसिस वर्क के लिए 2 महीना गांव में जाके रुका था। वहां पर अपनी जो भी पायलट सर्वे जो भी करना था वहां किया था। तो आई थिंक सर इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर दिस एफ जॉब। ओके, तो व्हाई बैंकिंग? व्हाई नॉट अदर करियर ऑप्शन यू विल चूज? सर एज आई मेंशन बिफोर सर, मेरे पापा सर इंश्योरेंस सेक्टर से सर जुड़े हुए हैं, इसीलिए सर मैं 12th के बाद मेरा एक इंटरेस्ट था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता हूँ। और बैंकिंग भी सर फ्रेशर्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए सर मैं बैंकिंग सेक्टर में आना चाहता हूँ। गौरव सर? हेलो किरण। यस सर। आपने कालिया योजना के बारे में सुना है? यस सर, यस सर। सो डिटेल में बता सकते हैं क्या है? यस सर। सर कालिया योजना में सर उसमें जो भी लैंडलेस फार्मर होते हैं उनको 12,500 पर ईयर मिलता है। और जो लैंडलेस लेबरर होते हैं जिनके पास जो फार्मर नहीं है, लेबरर है, उनको सर 10,000 पर ईयर मिलता है। और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है जिसमें कि 335 पर ईयर अगर वो रखेंगे तो उनको 2 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है इसमें। उसका एक्सटेंशन क्या है? कालिया फुल फॉर्म? सर सर वो अभी सर थोड़ा रिकल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
सो आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो, वहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है कि फ्लड्स बहुत आते हैं। यस सर। फ्लड्स आने से तो फार्मर का नुकसान तो होगा ही होगा। यस तो सर। उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे? मान लो कोई फार्मर कहता है कि मेरा नुकसान हो गया फ्लड की वजह से, और आपके ऊपर प्रेशर है मैनेजमेंट का कि उसका लोन रिकवरी करना है, उसके पास उतनी लिक्विडिटी नहीं है अभी, तो कैसे हैंडल करोगे आप उस सिचुएशन को? सर अगर वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अगर वो स्कीम अगर वो किया होगा तो उसको रिकवरी मिल सकता है। नहीं तो उनको ऐसा मतलब नहीं तो उनको ऐसे मतलब जैसे कि वेदर डिपार्टमेंट से सूचना मिल जाता है कि कैसे अगर जैसे कि अक्टूबर नवंबर के टाइम में आता है, हर साल अक्टूबर नवंबर के टाइम में आता है, फ्लड आता है। तो हमारे जो यहाँ पर आईएमडी डिपार्टमेंट है वो पहले से ही इंफॉर्मेशन दे देता है कि आप जो भी अपना फसल काट के रखे हैं तो उनको आप सुरक्षित अपने घर ले जाइए, या फिर ऐसे फील्ड में ना छोड़कर जाइए। अगर छोड़ के जाएंगे तो वो उसका नुकसान हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हेलो किरण। यस सर। यस सर। आपने बताया कि आपके पापा इंश्योरेंस सेक्टर में है और आप बैंक सेक्टर यस में आ सर। रहे हो, तो आप बैंक यस अश्योरेंस सर। कर रहे हो, तो थोड़ा बताइए बैंक अश्योरेंस के बारे में बताइए। सर बैंक और इंश्योरेंस के बीच डिफरेंस है। तो बैंक अश्योरेंस टर्म है ना, तो उसके बारे में बताइए ना। सर बैंक इंश्योरेंस जैसे कि सर हर बैंक अभी टाई अप हुआ है इंश्योरेंस एजेंसी के साथ। जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक सर मेट एजेंसी के साथ टाई अप हुआ है, और एसबीआई में सर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि एक रसियन कंपनी है उसके साथ टाई अप हुआ है ऐसे सर। तो जैसे कि सर हाँ एलआईसी सर जैसे कि यूको बैंक के साथ सर टाई अप हुआ है, तो ऐसे ही सर वो इंश्योरेंस सर लाइफ इंश्योरेंस। एज एन बैंकर, आपने बैंक ज्वाइन करने के बाद तो आपको बोला पॉलिसी के लिए, कस्टमर को पॉलिसी देना है आपको, तो आप कैसे कन्विंस करोगे कस्टमर को? उनको वो पॉलिसी का मतलब मेरिट्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें उनको क्या फायदा मिलेगा, और क्या और सर पॉलिसी के क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि आप इतने सालों तक अगर प्रीमियम भरेंगे तो आपको उसके बाद कितना कौन से एज से आपको मतलब वो मैच्योरिटी मिलेगा, वो सब उनको उनको डिटेल्स में बताऊंगा सर, ताकि वो अच्छे से समझ पाए और उसको अपना पाए। ओके। हेलो हेलो यस मैम। हेलो किरण. यस मैम। यस मैम। Tell me the difference between organic farming and sustainable farming. सर मैम ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैम नेचुरल सोर्सेस से हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो फिर नेचुरल फार्मिंग क्या है? मैम नेचुरल फार्मिंग है जिसमें कि कोई भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये सब यूज नहीं होता है, वो उसको नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं सर। नेचुरल रिसोर्स से हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैम वर्मी कंपोस्टिंग हो गया। वर्मी कंपोस्टिंग में आर्थ फॉर्म से हम फार्मिंग कर सकते हैं। ओके. और तो फिर मैम सस्टेनेबल फार्मिंग का? सस्टेनेबल फार्मिंग मैम सस्टेनेबल फार्मिंग जो मैम वो एनवायरनमेंट के लिए जो सही है, जो एनवायरनमेंट को उतना हानि ना पहुंचाए, उसको सस्टेनेबल फार्मिंग बोलते हैं मैम। ओके. तो सस्टेनेबल फार्मिंग बढ़ाने के लिए आप कुछ मेजर्स सजेस्ट कर सकते हैं? मैम जैसे कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स वो सब ना यूज करें, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ओके. ये सब सर मैम मैं बता सकता हूँ उनको। किरण जी, उड़ीसा की यस जो सर। स्कीम बताई थी मैंने, कालिया स्कीम,
उसका व्हाट्सएप नंबर भी शायद है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसका लॉन्ग फॉर्म भी वो भी पूछ सकते हैं। बाकी तो ओवरऑल मुझे ठीक है। Last question from me, like, do you have any idea about NPA? Yes, sir. Non-performing assets, sir. Yeah. Does it same for all loans? Agriculture loan, is it different like NPA? Sir, in NPA, sir, for agriculture loans, sir, it will be from after 1 year, sir. And other loans, its time period is 90 days, sir. I want to tell that for NPA, particularly for agriculture crops, it varies. Like for short-term crops, it will be like one cropping, two cropping season. For long-term, it will be like one cropping season. NPA regarding agriculture. Coming to other like other loans, it will be like 90 days. One question like, how can you reduce NPA in agriculture sector? You know, NPA is happening very high in agriculture sector. How can you reduce it? Any ideas or any suggestion? No, sir. मैं ओवरऑल सजेशन देना चाहूंगा सभी इंटरव्यू के एस्पायरेंट को कि इन जनरल वो आपसे इंट्रोडक्शन पहले पूछेंगे, ये एक्सपेक्ट मत करिएगा। कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो कि जस्ट आप कैसे आए, जैसे एनपीए क्या होता है, या फिर सीधा पूछेंगे एग्रीकल्चर इक्विल या बैंक ही क्यों। तो ये कभी एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मोस्ट ऑफ टाइम स्टार्ट तो इसी से होगा कि इंट्रोड्यूस करिए, लेकिन कई कई केसेस में इंट्रोडक्शन पूछते ही नहीं पूरा इंटरव्यू खत्म होने तक भी। Good afternoon, sir. Am I audible, sir? Audible, sir. You can introduce yourself. Sir, myself, Papanboy Arvind Kumar, sir. Yeah. I am from Erudipadu village of Kadapa district of Andhra Pradesh, sir. Yeah. I did my graduation from Sri Venkateswara Agriculture College of Acharya N.G. Ranga Agriculture University on 2022, sir. My father, sir, I have two siblings, sir. One brother and one sister, sir. My father was a farmer and my mother was a housewife, sir. And I am very hardworking and committed person, sir. I have good communication skills, sir. And my hobbies were playing cricket and seeing cartoons, sir. Okay. Why do you want to join as a AFO? Sir, I was preparing for this post from 2022 onwards, sir. Bank job is a white collar job, sir, and it has a job security, and getting this job made me enhances my social status in the society, sir. See, one thing I want to tell, like just a feedback before interview, because it is just mock interview. Okay. First thing is, you told you have good communication skill. Okay. If you are not comfort in any language, like if you are not comfort in English language, you can ask an interview panel that you can speak in Telugu. Okay. Because communication doesn't matter, like in what language you're speaking in the interview doesn't matter. The thing matters is how you present yourself. Interview means they check your ability, like how you like, not about your knowledge but about your personal. If not any language, you can ask the panel members. They will because you will be having interview in Hyderabad, I think so, if you are from Andhra. Yes, sir. They will be comfort in Telugu. They will allow you to speak. Okay, thanks. Next question is, do you have any idea, like you can tell about your place, native? Sir, my village is Erudipadu village, sir, and it was famous for an ancient temple, Sri Lakshmi Channakeswara Swami temple, sir. And as for Kadapa, it is famous for Amirpet Dargah, sir, and also Gandikota, sir. Do you have any idea about agriculture government schemes? You can name few schemes and you can just brief about it. Sir, PM Kisan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana,
PM Krishi Sanchaya Yojana. Okay, just can brief you. In interview, they will not take much long time. You can just use scheme like if you are naming PM Kisan Yojana, you can tell how it is helping farmers and what amount they are giving. You can just Sir, okay. Sir, under PM Kisan, the government of India providing 6,000 rupees to the farmers under 3 installments, sir. For every installment, it provides 2,000 rupees, sir. It is helpful for the farmers to cope up with the cost that are incurred in the cultivation of the crops, sir, like purchasing of the seeds and cultivation costs, sir. ओके ओके गौरव सर कुछ पूछना है आपको? Sir, do you know about YSR Right to Bharosa PM Kisan scheme? Yes, sir. So, what are the criteria and eligibility for that? Sir, for PM, yes, sir. Sir, it is combined with PM Kisan, sir. Okay. Eligibility for PM Kisan, there is for all the farmers from small marginal farmers to up to large farmers, it is also applicable, sir. Okay. Okay. Is it available to tenant farmers? Yes, sir. Okay. What about the installments or amount farmers getting? Sir, under this farmer getting under 3 installments for each installment, farmer getting 2,000 rupees, sir. In a year, he will get overall 6,000 rupees, sir. Are you sure 2,000 rupees per installment? Yes, sir. Okay. So 8 July is a very specific day celebrated in Andhra Pradesh. So, do you tell me about 8 July is celebrated on what purpose in Andhra Pradesh? Sir, I don't know. It's a Farmers Day celebrated in Andhra Pradesh as a tribute to YSR Reddy. YSR. Okay, Arvind, please remember it. And some suggestions and feedback. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अरविंद आपको, आई होप आपको समझ आती हो हिंदी। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए और थोड़ा सा सेविंग वगैरह करके जाइए अच्छे से, ठीक है? और ड्रेस वेल, बी कॉन्फिडेंट, स्माइल रखिए आपके चेहरे पे, बाकी सब बढ़िया है। और जो भी क्वेश्चंस आप दे रहे हैं तो प्रिसाइज रहिए उसमें, क्वेश्चन गलत कीजिए मत। And it's for all interview aspirants. When interview panel asks about scheme, so be sure that you should prepare with eligibility and the amount they get or installment they get. That's the two major points. Okay. सभी को जो मतलब किस टाइप के किसान उसमें एलिजिबल है, तो उनको कितना पेमेंट मिलने वाला है या फिर कितना उनको सब्सिडी मिलने वाला है, ये 2 चीजें मेनली कवर करनी होनी चाहिए उसमें। ओके, ठीक है, थैंक यू अरविंद एंड ऑल द बेस्ट ऑफ इंटरव्यू। अगले कैंडिडेट बुलाना चाहेंगे समीक्षा राजूकर, अगर आप प्रेजेंट है तो प्लीज एडमिट कीजिए। समीक्षा राजूकर। यस सर, आई एम समीक्षा राजूकर सर। ओके, कौन बोल रहा है अभी, सीरजा या फिर समीक्षा? यस सर, समीक्षा सर। पहले मैंने समीक्षा को नाम दिया था, तो सीरजा प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, इसके बाद कर लेंगे, ठीक है? ठीक है समीक्षा, कहाँ से हैं आप? सर मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। महाराष्ट्र से? यस सर। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Samiksha Diliparav Rajurkar. I came from Yavatmal district, Maharashtra. I completed my Bachelor of Science in Agriculture from Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapith, Akola. Coming to my family background, we are 3 members in my family: my mother, me, and my younger sister. My hobbies is I like to practicing yoga early in the morning, and also I like to perform kitchen gardening. Thank you, sir. Okay, Samiksha. As you are from Vidarbha region, why most of the farmers say in Vidarbha suicides? Actually, sir, there are several reasons. First reason is the high indebtedness. Second one is alcoholism, and third one is unfavorable weather condition. Fourth one is minimum land holding. That's it, sir.
जब आप एक एओ बनेंगी तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे फार्मर को, या फिर आप अपने तरफ से ऐसा क्या करेंगे फार्मर सर्विस बंद या फिर कम हो? सर, जैसे कि फार्मर के पास मिनिमम लैंड होल्डिंग होती है, तो मैं उनको अलाइड एक्टिविटी सजेस्ट करूँगी, जैसे कि वो खेती के साथ-साथ अलाइड एक्टिविटी करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, या फिर जो लॉस होता है खेती में उसको ओवरकम कर सकते हैं। और फिर मतलब उनके पास मिनिमम लैंड होल्डिंग है, तो उसके लिए उनको मैं जो इंश्योरेंस मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उनके बारे में बता सकती हूँ। जैसे कि मतलब क्रॉप लॉस हो जाए तो फिर इंश्योरेंस अगर निकाल के रहा उनके पास, तो फिर वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़रा बताइए। सॉरी सर, आई डोंट हैव आइडिया। You don't have any idea about women empowerment? महिला Yes सशक्तिकरण? sir. Yes sir. So tell me about महिला To सशक्तिकरण. Mahila Sashaktikarans means to make a woman capable for doing any work like in agriculture, in other sector, etc. Okay. हेलो समीक्षा, Yes sir. आपका प्रेफरेंसेस दिए, कौन सा बैंक पहला प्रेफरेंस है आपका? सर, मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को पहला प्रेफरेंस दिया है। और लास्ट? लास्ट इंडियन बैंक सर। क्यों इंडियन बैंक फर्स्ट पे क्यों नहीं? और यूनियन बैंक? एक्चुअली सर, यस सर, एक्चुअली सर मैंने सीनियर से कंसर्न किया था, और फिर मैंने कुछ मेरे दोस्तों से भी कंसर्न किया था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ये प्रेफरेंस, तो सर मैंने उनके वाइज प्रेफरेंस दिया। आपके सीनियर्स ने आपको अपने सीनियर से कंसर्न किया था? Yes sir, and also I watched some YouTube videos sir on that basis. इस साल यूनियन बैंक की कितनी वैकेंसीज है? I think नहीं है सर यूनियन बैंक की वैकेंसी। हेड ऑफिस कहाँ है? Okay. Yeah. So do you know about payments method in bank? What sir? पेमेंट मेथड्स इन बैंक, बैंक में किस तरह के पेमेंट किए जाते हैं? पेमेंट्स मेथड, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस का नाम सुना होगा? Yes sir, yes sir. तो उनमें डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस 2-3 पॉइंट में इलैबोरेट कर सकते हो आप? Can I explain both मतलब तीनों टर्म बतानी है सर? आपको जो कंफर्टेबल लगे, इन जनरल व्यू। ओके सर, ओके सर। NEFT, RTGS and IMPS, there are three transaction methods. First one is NEFT. Sir, I'm forgetting the full long form. Sir, NEFT में minimum limit 1 rupees है, maximum limit unlimited है, but it depend on bank to bank. ये ट्रांजेक्शन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड से होता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक, ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है। एंड IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये ऑनलाइन है, मिनिमम 1 रुपीज टू मैक्सिमम 5 लाख। थैंक यू सर। मैक्सिमम कितना है? 5 लाख? 5 लाख सर, IMPS। ओके ओके, ये तेजस सर। यस सर। ओके समीक्षा जी। हेलो। यस यस। हाँ, बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में पता है आपको? यस सर। बताइए बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है? बैंकिंग ओम्बड्समैन मतलब अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मतलब मैंने ATM मशीन से पैसे निकाले, मुझे पैसे कट होने का मैसेज भी आया, मेरे अकाउंट से अमाउंट कट भी हो गए, लेकिन मुझे ATM से पैसे मिले ही नहीं। और फिर मैंने बैंक में कंप्लेंट की कि ऐसा ऐसा इशू हुआ है करके। फिर अगर 30 दिनों में हमारे कंप्लेंट का सोल्यूशन हमको नहीं मिला, तो हम बैंकिंग ओम्बड्समैन में ऑनलाइन तरीके से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। फिर वो हमारे जो कंप्लेंट है उनका हमको सोल्यूशन देते। ओके। यस सर। यस सर। ओके ओके समीक्षा जी। यस सर। आप अपना बैंकिंग नॉलेज थोड़ा-सा इम्प्रूव करिएगा। उसके ओके बाद आपने बताइए आप PMABY, थोड़ा-सा उसके बारे में प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि उसके बारे में पूछा जा सकता है।
फार्मर्स Yes, यूनिट sir. आपके यहाँ काफ़ी क्रूशियल मुद्दा है, तो ज़रा फार्मर्स साइड पे ध्यान दीजिएगा। और Yes, वुमेन sir. एम्पावरमेंट, ज़रा वुमेन एम्पावरमेंट पर फ़ोकस करिए, क्योंकि लड़कियों से ये सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं कि एज़ अ वुमन आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगी? तो उसमें आपको Okay, sir. बताना है कि आप एसएचजी प्रमोट करेंगी, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, जो इन फ्यूचर उसकी लड़की की शादी के लिए उसके पढ़ाई के खर्चे जो उठाएँगी, सुकन्या समृद्धि अकाउंट आप खुलवाएँगे। इसके अलावा महिला विकास पत्र जो बैंक में आता है, जिसमें अगर आप एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉज़िट करते हैं, लगभग हाँ, सर. 7.5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है वुमेन एम्पावरमेंट में। तो ओवरऑल Yes, क्या sir. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। Sir, I have a question, sir. Yes, please ask. Sir, when I answering the question, मतलब मेरा जो लुक है वो ठीक है क्या सर? थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, मतलब चेहरे पे स्माइल वगैरह, आईज एक्सप्रेशन। स्माइल रखिए। अभी देखो वर्चुअल मीटिंग है तो एग्जैक्ट बता नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे Yes, sir. थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको एजिटेशन होगी, थोड़ा सा वो रहता है प्रेशर का माहौल। लेकिन काम रहिए Yes. और स्माइल रखिए, ड्रेस वेल और कॉन्फिडेंट दिखेंगे, चेहरे से पता चल जाएगा कि भैया कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir.